Welcome back, class. Now we're gonna study our next chapter, that is human resource. Before I start this, what is resource? I have explained you in my Google class. So resource is the division of, okay, if you divide these two words, you will see sources. What are the sources which are available in your environment? Is your source, for example, source of light. Okay, you have agriculture. For agriculture you have soil. For your breathing you have air. So these are sources. But when you reuse it means when you resource it. इसी सोर्स को दोबारा जब आप इस्तेमाल करते हैं फॉर योर ओन नीड्स, फॉर योर ओन यूटिलाइजेशन बाय अ ह्यूमन, and human also use their source, that is brain. So this is known as your totally human resource. Okay, we will learn line by line of this chapter. So starting it, people are a nation greatest resource. Nature's botany becomes significant only when the people find it's useful. It is peoples with their demand and the ability that turn them into a resource. So पीपल्स के डिमांड के अकॉर्डिंग, पीपल की एबिलिटी के अकॉर्डिंग कोई भी चीज़, कोई भी सोर्स आपका रिसोर्स बनता है, यानी कि वो उस चीज़ का हिस्सा बनता है. हेंस द ह्यूमन रिसोर्स इज़ द अल्टीमेट रिसोर्स. हेल्दी एजुकेशन, मोटिवेटेड पीपल develop resource as per their requirement. So human resource is when any source is utilized according to humans need with the help of their knowledge, understanding, their health, their education, motivation, they were known as, and resource turn into, this is known as your resource by human resource. Okay, it is exactly प्रोपोर्शनल टू योर रिक्वायरमेंट. अगर आपको रिक्वायरमेंट है तभी आप कोई भी चीज़ को अपने लिए बना सकते हैं. ओके, एंड इन दैट कॉन्टेक्ट ह्यूमन इज़ ऑल्सो अ रिसोर्स. So human resources like other resources are not equally distributed over the world. They differ in their educational level, age, sex, their numbers and the characteristics also keep changing. So ह्यूमन रिसोर्स जिस तरीके से बाकी रिसोर्स अवेलेबल हैं अनइवनली ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, वैसे ही ह्यूमन रिसोर्स भी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है आपके इंडिया में. और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो डिफ़र करते हैं, जैसे सभी की एजुकेशन एक जैसी नहीं है, सभी एरिया में एक जैसे ही एज के लोग नहीं रहते हैं. वी हैव वेराइटी नंबर ऑफ एजेस ऑफ पीपल हु आर लिविंग इन पर्टिकुलर एरिया. डिफरेंट दे हैव इन देयर जेंडर इज़ ऑल्सो डिफर. कहीं मेल की पोजीशन ज़्यादा है, कहीं फीमेल की ग्रोथ ज़्यादा है. सो योर ह्यूमन रिसोर्स इज़ ऑल्सो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन योर country. Understood? Coming to the next page. Okay, there is one box which is given here. You can go through this. Okay, do you know the government of India has a Ministry of Human Resource Development? The ministry was created in 1985 within an aim to improve people's skill. This just show how important people are as a resource for the country. सो हमने ये जाना कि ह्यूमन रिसोर्स या ह्यूमन हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है एज अ रिसोर्स फॉर आवर कंट्री. कंट्री के लिए ह्यूमन हमारे लिए रिसोर्स है, और ह्यूमंस के लिए मिनरल्स, वाटर, सॉइल, ये सब इनके लिए रिसोर्स है, जितनी भी नेचुरल चीज़ें हैं. तो इस चीज़ को मोटिवेट करने के लिए, इस चीज़ को डेवलप करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने एक मिनिस्ट्री स्टार्ट की है, एक डिपार्टमेंट स्टार्ट किया था 1985 में, जिसका नाम था ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. और अभी के समय में इस नाम को चेंज कर दिया गया है. Okay, you should have some current information about this particular topic. Now there is one picture is given here. There some stories are written that there are 500 children in my school. How many people do you think there are in the whole world? There are 30 children in my school.
around 6.6 million people. How do you write that in a number? My village has 1000 people. So he just, there are 4 people who are discussing about how many people they have in their particular department, in their particular class or in the world. So it is differing. Can you see? कहीं पे 500 चिल्ड्रंस हैं, कहीं पे 1000 पीपल हैं, कहीं पे 6.6 बिलियन पीपल हैं. सो दिस इज द डिफरेंसेस. As I have explained in the second paragraph that human resource is also unevenly distributed. Okay, so this is a picturization for your explanation. Now do you know this one? Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana was started in 2015 aiming to train 1 crore Indian youth from 2016 to 2020. The objective of this scheme is to encourage aptitude towards the employable skills by giving equality training to probable and exciting and existing wages earn. तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना अभी भी इस टाइम 2020 में बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है. स्टार्ट की गई थी 2015 में, एक्टिवेट किया गया था 2016 से लेकर के 2020 के लिए. लोगों को उनके स्किल के अकॉर्डिंग उनको ट्रेन करना, उनको डेली वेजेस के लिए इतना सक्षम बनाना सो दैट दे कैन अपग्रेड, they can increase the economy of their country also, and they can evenly stably live in their home also. आपको पता है जब आपकी मार्केट बढ़ती है तब आपकी कंट्री का भी नाम होता है. वैसे ही जब सभी इंडियंस काम करते हैं, एम्प्लॉयड होते हैं, तो आपकी कंट्री की भी ग्रोथ होती है. अंडरस्टूड? Now coming to the next topic, that is distribution of population. What is distribution of population? Distribution होता है when you distribute anything in equal number, not equal number, anything that you distribute. Distribute मतलब देना या कहीं होना. ठीक है, अब किसके हिसाब से पढ़ना है हमें? पॉपुलेशन के हिसाब से. सो द वे इन विच द पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस द अर्थ सरफेस इज़ नोन एज द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन. तो जिस तरीके से लोग हमारे अर्थ सरफेस पे स्प्रेड आउट हैं या फैले हुए हैं, उसको आप कहते हैं पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन. More than 90% of the world population live in about 30% of the land. इंडिया के कम से कम 90% लोग जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ सीमित हैं 30% लैंड पे ही. तो आप सोच सकते हो कि ये कितना ज़्यादा हैवी पड़ता होगा आपके लैंड पे. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज़ एक्सट्रीमली अनइवन. तो वर्ल्ड में जिस तरीके से पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूट है वो एकदम से अनइवन है. अनइवन मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. फॉर एग्जांपल अगर 2 लोग रायबरेली में हैं तो 2 लोग कानपुर में नहीं हैं, अनइवन है. यस. So some areas are very crowded and some are spread populated. The crowded area are South and Southeast Asia, Europe, Northeast, North America. Very few people live in the high altitude areas, that is tropical desert, high mountains and area of equatorial forest. So वो एरिया जो इक्वेटर से बहुत दूर है वो वहाँ पे पॉपुलेशन आपको कम दिखेगी. ठीक है, जितना ही आप दूर जाएंगे उतनी ही पॉपुलेशन आपको कम दिखेगी इस लैटिट्यूड में, और जितना ही आप इक्वेटर के पास रहेंगे उतना ही पॉपुलेशन ज़्यादा है. क्योंकि कुछ एरिया ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ओवर क्राउडेड हैं. उसके नाम आपको यहाँ पे दिए हुए हैं. इसका रीज़न हम अभी भी पढ़ेंगे. मैनी मोर पीपल लिव नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर देन साउथ ऑफ द इक्वेटर. आपको ये भी जानना चाहिए कि कुछ लोग जो हैं वो इक्वेटर के नॉर्थ में ज़्यादा रहते हैं, इस एरिया में ज़्यादा रहते हैं एज़ कम्पेयर टू दिस एरिया, इक्वेटर के नियर में. तो यहाँ पे बहुत कम दिखते हैं एज़ कम्पेयर टू दिस एरिया. एंड ऑलमोस्ट द 3/4 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव इन 2 कॉन्टिनेंट, दैट इज़ एशिया एंड अफ्रीका. तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बच्चे. एशिया और अफ्रीका में लगभग 3/4 पॉपुलेशन रहता है, दैट इज़ हाफ से भी ज़्यादा. ठीक है. 60% of the world people stay in just 10 countries. All of them have more than 100 million people. और वर्ल्ड में कम से कम आपके 10 कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पे 100 मिलियन ऑफ पीपल रहते हैं. तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि वर्ल्ड की जो ह्यूमन रिसोर्स है वो कौन सी कंट्री में सबसे ज़्यादा हैं. ओके, पिक्चर दिया हुआ है, दैट इज़
वर्ल्ड पॉपुलेशन बाय द कॉन्टिनेंट के हिसाब से किस तरीके से दिया है। सपोज़ अगर हमारे वर्ल्ड में 100 पीपल रह रहे हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा लोग कहाँ ले रहे हैं, तो एशिया में हुआ आपका, यूरोप, अफ्रीका, लिव इन द सेंट्रल साउथ अफ्रीका, लिव इन द नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड. So these are the area where population live more numberly. Okay, then you have some bar diagram also, you can go through it, you can notice that how many people are there, and due to this, okay, study this and answer these questions, you can easily answer it. Okay, only 5% people कहाँ हैं तो आप बता सकते हैं इसमें से देख करके. So do it by your own self. Now coming to the next topic, that is next topic is your density of population. What is density of population? Population density is a number of people living in a unit area of Earth's surface. It is normally expressed as a per square kilometer. The average density of population in the whole world is 51% per square kilometer. South Central Asia has the highest density of population, followed by East and Southeast Asia. So what is density? Density होता है उस एरिया में कितना ज़्यादा लोग रहते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग एक साथ रहते हैं, उसे आप डेंसिटी कहते हैं. और एवरेज डेंसिटी क्या होती है? एवरेज डेंसिटी ऑफ होती है जहाँ पे पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 51% पर स्क्वायर किलोमीटर रह रहे हैं. और ऐसा एरिया कौन कौन सा है? ऐसा एरिया है आपका साउथ सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया का साउथ सेंट्रल एशिया, और हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन आपकी सबसे ज़्यादा यहीं पे है साउथ सेंट्रल एशिया में, और उसके बाद ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया में. व्हाट इज़ एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज़ 382% पर स्क्वायर किलोमीटर. यानी हर एक स्क्वायर किलोमीटर में कम से कम एवरेज पीपल कितने रहते हैं? 382. समझ रहे हैं बात? इंडिया को ऐस ले लीजिए, ठीक है. और इंडिया में अगर एवरेज के हिसाब से हम चलें तो कुछ स्क्वायर किलोमीटर में आपके 382 पीपल रहते हैं. ओके, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कौन सा स्टेट है जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन अनइवन होगा. ठीक है. ओके, सो आई विल कंटिन्यू दिस पार्ट, दैट इज़ फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन माई नेक्स्ट वीडियो, दैट इज़ पार्ट 2. All right, thank you for class joining me. Okay, keep studying.